Jai Jagannath, Jai Masambli. I will be posting all type of question answer from class 6 to 10 of R.D. Sharma book, R.S. Agrawal, NCERT book, even the DAV books also. Even I will be posting the question answer of competitive exam. So keep touch with the channel, YouTube channel to get the update. Thank you. Good evening. Today we are going to solve all the worksheet brain teaser and all the question answer of chapter 1, that is the natural number and the whole number. Okay, let's start. Coming to worksheet 1, okay, write the Roman number. First number is that, okay, 33 का रोमन नंबर फिर कैसे करके करेंगे देखो. This will be 30 plus 3. Okay, it is easy. That will triple x and triple I. Okay, now come to 500. You know directly you can write D here. Okay, 48. You can do 40 plus 8. Okay, this will be 40 means what? That is XL, and 8 means V triple I. Okay, और now how you can know but 40 कैसे आया? Then you can do this is 50 minus 10, और जो माइनस होता है उसी को पहले लिख देते हैं x, एंड द वैल्यू ऑफ द ग्रेटर नंबर दैट इज 50. 50 का मतलब l. ओके, xl, दैट्स व्हाई इट इज xl b ट्रिपल आई. नेक्स्ट 76. नाउ इट इज 70 plus 6. How it is 70? l 50, 60, 70, then 5, 1, 6. l xx vi. How you can do 95? That is 90 plus 5. And how you can know that it's 90? That will be 100 minus 10. It means this is xc. Okay, v. This is x. This is c. xc v. Now come to 41. That is 40 plus 1. You know 40 is what? Here it is written already. Okay, that is xl I. Then 87 is 80 plus 7. This will be 50, 60, 70, 80, 5, 6, 7. LXXX D double I. Okay. Now 66 becomes 60 plus 6. Same way. This will be 50, 10, 60, 5, 1, 6. 19 become how much? 10 plus 9. Don't do 20 minus 1. 20 minus 1 करोगे गलत हो जाएगा. Okay. Do 10 plus 9. That is x. And what is 9? Ix. Now it is directly you can written f. The value is given. Direct value you can write. Now come to the second number. Okay. Second number देखते हैं. This is, look here, xx 20, vi plus 6, that is 26. Okay. Same to same here. X 50. Okay. 50 plus xx 20 plus v triple eight 7. It means this will be 77. Okay. Now xc, x means 10. Now look, x is the smallest number. It is written before the c is 100. Okay, it's mean this will be xc will be 90. Okay, how 90? This is 100 minus 10, that is 90. Now plus 1, that will be 91. This is x, sorry, l 50. Okay, plus triple x means 30 plus 5, and your answer will be 85. Okay, now d means you know what is t. Directly you can write 500. Now same thing here, xc 90 plus ix, what is ix? 9, that is 99. Come, here it is xc again 90 plus v double I 7, that will be 97. Okay, l 50 plus 5 v. Okay, that will be 55. xl, it is important. X is the smallest number written before the L. L is 50. 50 minus 10. That will be 40. And plus 1. This one. Okay. This will be 41. Now the last number. XX. XX double X. Okay. It means 20. Plus IX. IX means 9. That is 29. Okay. Thank you. Come to the next number. Here it is written solve and write. पहले solve करना है फिर रिटर्न करना है किसमें? रोमान नंबर में.
It means first you add this will be 9 9. Okay, and how it is 9 9 written? That is 90 plus 9 x before c, क्योंकि 10 कम करना पड़ेगा कहाँ से? 100 से. Okay, this is 90, and again you have to write the 9. What is 9? Ix. This is the answer. Okay, now this will be first subtract it. Okay, 2 4 11 minus 7 4. Okay, and 1 minus 1 is 0. It means 42 is the answer, but you have to write in the roman. Roman means 40 plus 2. What is 40? 10 कम किससे? 50 से. फिर 2 add 2. Okay, xl double I is the answer. Now 12 7 ja, how much? 84. Okay, this will be 80 means what? 80 plus 4, that is 84. 80 means what? 50 plus 30. 50 means L. 30 means triple X. And 4 means IV. Okay, this is the answer. नेक्स्ट लुक किया 645 डिवाइड बाय 45. डिवीजन करना इंपॉर्टेंट है. हम एक काम करते हैं विदाउट ड्रॉप, ड्रॉप बिना किए करते हैं. देखो 45 है, उसका मतलब लास्ट में 1 आने का चांसेस है. ओके, और 40 के आसपास की टेबल देखते हैं. अगर 40 के आसपास की टेबल देखेंगे तो मल्टीप्लाई 8 करेंगे, तो मल्टीप्लाई अगर 8 करेंगे तो इट्स बिकम 3200 समथिंग आएगा. 9 कर देने से क्या हो जाएगा? तो 36,000 से ज्यादा हो जाएगा. ओके, चांसेस वही है. तो उसका मतलब हियर इज द चांस 81 आंसर. ओके, ऐसे वाला ट्रिक जानने के लिए यू कैन डू द वैदिक मैथ क्लास, यू कैन ज्वाइन देयर. ओके, वैदिक मैथ क्लास से यू कैन गेट द इजी कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेशन. जितना भी ऑपरेशन है सभी का इजी कैलकुलेशन मिल जाएगा. ओके, नाउ 81. व्हाट इज 81? सेम थिंग 50 प्लस 30 प्लस 1. 50 मीन्स एल, 30 मीन्स ट्रिपल एक्स, और 1 मीन्स आई. ओके, दिस इज द आंसर. नाउ कम टू नंबर 4. ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मीनिंगलेस? कौन मीनिंगलेस देखते हैं. देखो भी दो भी एक साथ नहीं लिख पाएंगे. ओके, दो भी का मतलब मिलाकर तो 10 हो गया, इसके बदले तो एक्स लिख सकते हैं. ओके, सॉरी दिस इज रॉन्ग, ये गलत हो गया. ठीक है, नाउ कम एक्स एल आई. ओके, एक्स मीन्स 10. 10 कैन बी रिटन बिफोर एल. ओके, एल से पहले लिख सकते हैं क्योंकि छोटा नंबर है. ओके, इट्स मीन्स दिस इज 40 प्लस 1, ये 41 होगा. इट इज पॉसिबल. ओके, नाउ एल आई वी, एल का मतलब 50, आई वी का मतलब 4, तो ये होगा 54. इट इज पॉसिबल. आई सी, देखो सी से पहले आई नहीं लगेगा. ओके, तुम अगर सोचोगे दिस इज 99, देन दिस इज रॉन्ग. ओके, ये गलत हो जाएगा. ओके, तो इट इज नॉट पॉसिबल. डी वाला भी पॉसिबल नहीं है. ओके, इट्स मीन्स इट इज मीनिंगलेस. ठीक है, डी नंबर मीनिंगलेस है. ई नंबर में आते हैं. देखो एल एल, दो एल के बीच में आई आ गया. हाउ इट इज पॉसिबल? ओके, एल का मतलब होता है 50 प्लस 1 51, 50 प्लस 1 51, फिर 50 कैसे आ पाएगा? दिस इज नॉट पॉसिबल, ये वाला पॉसिबल नहीं. ओके, इट इज मीनिंगलेस. सेम टू सेम आई वी, 4 को तो हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे किससे? 100 से. ओके, इट इज नॉट पॉसिबल, ये नहीं कर पाओगे. ओके, हाँ, दिस इज मीनिंगलेस. नाउ एक्स सी आई, इट इज पॉसिबल. हाउ? देखो दिस इज 10, 10 छोटा हो सकता है किससे? हम माइनस कर सकते हैं 100 से. ओके, फिर प्लस 1. इट्स मीन्स व्हाट? दिस इज 91, एंड दिस इज पॉसिबल. इट इज नॉट पॉसिबल. देखो 50 है, देखो 50 है तो 50 से हम 10 माइनस कर सकते हैं, 5 माइनस नहीं कर सकते. ओके, 10 माइनस कर सकते हैं, 5 नॉट पॉसिबल. ओके, इट इज मीनिंगलेस, ये मीनिंगलेस में आएगा. कम टू द अनदर नंबर, नंबर 5. मैच द फॉलोइंग. देख लेते हैं. देखो ऊपर ऊपर से डायरेक्ट पता चल जाएगा. दिस इज 500. ओके, एक्सएल का मतलब 40. इट्स मीन्स 500 प्लस 40 प्लस भी का मतलब 5. ये 5 लिखो. ओके, तो उसका मतलब 545 इज द आंसर. हाँ, ये वाला है. ठीक है, नेक्स्ट एम एम, दो एम लिख सकते हैं. ओके, मैक्सिमम 3 तक लिख सकते हैं ना, तो 2 एम पॉसिबल है. तो एम का मतलब 1000, 1000, 2000, 10, तो 2010. दिस इज एम एक्स. ओके, एम का मतलब देखो एम, इट इज पॉसिबल. सी का मतलब होता है 100. ओके, 100 कम हो गया किससे? एम से. एम कितना है? 1000. ओके, अब 1000 से 100 कम हो जाएगा, मीन्स दिस विल बी 900. ओके, प्लस वी ट्रिपल आई का मतलब 8, तो 908. दिस इज ओके. नेक्स्ट सी सी, इट इज पॉसिबल. दो सी एक साथ लिख सकते हैं, मैक्सिमम 3 लिखना है. ओके, 2 सी का मतलब 200, 100 प्लस 100 प्लस 3, 203, ये वाला. ओके, नेक्स्ट डी एक्स. ओके, इट इज पॉसिबल. हाउ इट इज पॉसिबल? देखो डी का मतलब क्या होता है? 500. ओके, प्लस एक्स सी. एक्स सी का मतलब 10 कम कितने से? 100 से. उस इट्स मीन्स दिस इज 90 प्लस अगेन 1, 591.
दिस इज ओके, इट्स मीन्स इट इज पॉसिबल। नाउ कम टू नंबर 6। नंबर 6 में आ जाते हैं। राइट द फॉलोइंग इन रोमन नंबर। रोमन लिखना है। ईयर इन विच द इंडिया गट इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंस कब हुआ था? 1947। ओके, तो यहाँ पे करते हैं चलो। इट्स मीन्स हाउ इट इज 1000 प्लस 900 प्लस 40 प्लस 7। ओके, नाउ दिस इज m, दिस इज cm। ओके, देन दिस इज x l, this is v double I। okay, now what will the answer? M C M X L V double I। okay, year in which India become republic, republic is 1951। okay, it means 1000, वही same process, 1000 plus 900 plus 50 plus 1। okay, now this will be M, okay, CM L I, it is the answer। now here you won, दिस इज द होमवर्क फॉर यू। सभी का तो 1 ईयर अलग अलग हो सकता है। ओके, तो यू कैन डू दिस। प्रेजेंट ईयर, नाउ इट इज 2026। इट्स मीन्स इट इज 2000 प्लस 20 प्लस 6। नाउ 2000 मीन्स एम एम, 2m। ओके, 20 मीन्स एक्स एक्स, 6 मीन्स वी आई, एंड दिस इज द आंसर। ओके, नाउ कम टू द वर्कशीट 2। वर्कशीट 2 क्या बोला है देखते हैं। कंप्लीट द स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स। द स्मॉलेस्ट होल नंबर, देखो होल नंबर में से सबसे छोटा कौन होगा? 0। देयर इज डेक्स लार्जेस्ट होल नंबर, तो इन्फिनिटी हो जाएगा। ओके, इन होल नंबर डेक्स एज नो प्रेडिसेसर, देखो किसके, और इसका मतलब 0 इज द स्टार्टिंग नंबर, तो इसके आगे और कोई नंबर है ही नहीं, तो नो प्रेडिसेसर। द प्रेडिसेसर ऑफ द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर को पहले लिखते हैं। ओके, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कितना होगा? 4 0। ओके, एक के साथ -1 कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 9999। ओके, देन सक्सेसर ऑफ वही ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, पहले ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखो, 1 2 3 4 5 +1 कर दोगे क्योंकि सक्सेसर बोला है। योर आंसर विल कम एक के साथ 0, मीन्स 1 लाख। स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर पहले लिख देते हैं, उसका मतलब एक के साथ 6 0, 1 2 3 4 5 6 0। ओके, अब बोला है देखो स्मॉलेस्ट एंडिंग इन 5, ये तो 0 के साथ एंड हुआ, उसका मतलब पहला 5 को ऐड कर दो तो लास्ट में 5 आ जाएगा। 1 2 3 4 5, 0 और 1। ठीक है, तो ये कितना डिजिट बन गया देखो, 10 लाख 5। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट जी नंबर। देखो 387 इज द डेक्स ऑफ 388 ऑफ द नंबर लाइन। नंबर लाइन से देखो ये पहले आ जाएगा, ये बाद में आएगा, उसका मतलब इससे 1 कम है। ओके, इससे 1 कम है, 1 कम को क्या बोलते हो? प्रेडेसेसर। ओके, नेक्स्ट इससे क्या है देखो, +1 है, +1 को क्या बोलते हो? सक्सेसर। ठीक है, ये सक्सेसर। नेक्स्ट नंबर 2, राइट द सक्सेसर। ओके, इसके साथ +1 कर देना, दैट इज 4 5 6 3 9, +1 कर देना, 9 + 1 10 होता है। ओके, 0010, इसके साथ भी +1 कर देना। ओके, 2 2 0 2 1 0 +1 4 2 2 6 3 7 3। ओके, सेम टू सेम, प्रेडेसेसर का मतलब -1, 1 से 1 कट गया, 3 3 8 0 0। ओके, बच्चे जैसा है, -1 कर देना। ओके, अब देखो ये 09 बनेगा। ठीक है, सभी को 9 बना दोगे। ओके, और ये एक कट जाएगा, जितना 0 है सभी को 9 कर देना, 1 2 3 4 5, कम खत्म। -1 6 6 9 8 9 7 8, ऐसे लग रहा है कि मोबाइल नंबर लिखा है। हाँ हाँ, ठीक है। देखो 10 में से 1 तो 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी छोटा हो जाएगा ना, 80 11 5 6 6 9। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट नंबर 4। देखो फाइंड द नेक्स्ट 3 सक्सेसर। ओके, क्या बोला है? नेक्स्ट 3 सक्सेसर किसका? इसके साथ पहले 1 करोगे, +1 करोगे, उसका आंसर आ जाएगा, जितना भी आएगा फिर +1 कर देना, जितना आंसर आएगा फिर +1 कर देना, ये बच्चे जैसा कर लेना तुमको। 3 इमीडिएट प्रीडिसेसर। ओके, देखो फाइंड 3 इमीडिएट प्रीडिसेसर, वही मतलब सेम, -1 करते जाना, फिर -1। ओके, इक्वल टू, सॉरी,
फिर -1 कर, जितना भी आंसर आएगा फिर -1 कर दोगे, 3 बार -1 को करते जाओगे, देन यू विल गेट द आंसर। ओके, तो यू हियर द आंसर विल कम। कंपेयर द फॉलोइंग नंबर, कंपेयर करो, देखो सेम डिजिट्स है, तो पहला वाला डिजिट को देख लो, 7 ग्रेटर है। ओके, देखो यहाँ पे पहले डिजिट गिन लेना, 5 डिजिट, 5 डिजिट। ओके, अब देखो 1010 सेम है, फिर 8 आ गया, 8 बड़ा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे भी 4 डिजिट, 4 डिजिट, 9 बड़ा है स्टार्टिंग से ही। ओके, तो ग्रेटर सिंबल। अब देखो 3 3 6 डिजिट, 3 3 6 डिजिट। ओके, इसमें से देखो 1 3 तो दोनों का सेम है, लेकिन यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, तो 6 इज ग्रेटर। अरेंज द फॉलोइंग इन द असेंडिंग ऑर्डर। ओके, असेंडिंग ऑर्डर में बोला है, पहले डिजिट देख लो कौन छोटा डिजिट है, देखो यहाँ पे 43, 34। ओके, व्हाट इज असेंडिंग ऑर्डर? असेंडिंग ऑर्डर मतलब स्मॉल टू बिग, स्मॉल टू बिग, उसका मतलब ये पहला रहेगा। ठीक है, फिर सेकंड में आ जाएगा ये। नेक्स्ट 3 डिजिट वाले देखते हैं, ये 3 डिजिट, ये 3 डिजिट, छोटा कौन है ये, फिर ये, उसके बाद नेक्स्ट डिजिट, ये 5 डिजिट का है, ये भी 5 डिजिट। ओके, तो सब छोटा 5 नंबर पोजीशन में आ जाएगा, ये 6 नंबर पोजीशन में, ये 7th नंबर पोजीशन में, लास्ट नंबर सेम टू सेम। व्हाट इज डिसेंडिंग ऑर्डर? डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब बिग टू स्मॉल। ओके, तो यहाँ पे देखो सबसे बिग देखते हैं, मैक्सिमम डिजिट कितना है, देखो यहाँ पे 3 3 6 है। ओके, ये भी 3 3 6 है, तो देखते हैं बड़ा कौन है, ये बड़ा है, तो ये पहला पोजीशन में आ गया, फिर सेकंड में ये। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो सबसे ज्यादा डिजिट ये रहा, ये 3 वाला पोजीशन। नेक्स्ट 4 डिजिट, 4 डिजिट और कोई नहीं है, दोनों में से चेक करो, दिस इज 4th पोजीशन, दिस इज 5th पोजीशन। नेक्स्ट दिस इज 6th पोजीशन 3 डिजिट वाला, देन दिस इज द 7th पोजीशन। कम टू नंबर लाइन 9, फॉर्म द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर करना है यूजिंग, ये डिजिट को 3 8 9 को यूज करके, यहाँ पे बोला है डिजिट में रिपीट, रिपीट हो सकता है, तो यहाँ पे बोला है ग्रेटेस्ट, देखो ग्रेटेस्ट, तो मैं बॉक्स बना दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट 7 बॉक्स में रखेंगे। ठीक है, डिजिट्स में रिपीट, हर सभी में रिपीट कर देंगे तो ग्रेटेस्ट क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे भी वही बोला है, देखो सेम टू सेम 6 डिजिट का, 1 2 3 4 5 6। ओके, क्या करना है, स्मॉलेस्ट करना है, यहाँ पे ध्यान देना, ये 3 डिजिट को यूज करके स्मॉलेस्ट करना है, स्टार्टिंग से जीरो लिख दोगे तो वो 6 डिजिट और काउंट नहीं होगा, 6 डिजिट से कम हो जाएगा। ओके, तो जीरो स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं होगा, तो स्टार्टिंग से उसके अलावा छोटा नंबर कौन है, 4 और 5 में से, तो 4, तो 4 से स्टार्ट करते हैं। अब जीरो कैन बी रिपीट, जीरो को लिखते जाओ, 1 2 3 4। Come to worksheet 3, and it is saying that fill in the blanks to make the following statement true. Okay, what this property is called, this is called commutative property. What? Commutative property. ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, दिस इज जस्ट लाइक दैट, ए अगर बी के साथ ऐड हो रहा है, या बी को तुम ए के साथ ऐड करो, दोनों का आंसर सेम ही मिलेगा, दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, इट्स मीन दैट, देखो ये तो एडिशन हो गया, इट्स मीन दिस विल बी कम देयर, दोनों को फिर ऐड कर दो, द आंसर विल बी सेम। ठीक है, आंसर नहीं पूछा है, स्टेटमेंट पूछा है। नेक्स्ट सेम टू सेम, यहाँ पे 3 नंबर है, वही प्रॉपर्टी सेम प्रॉपर्टी लगेगा। देखो 1 2 3 नंबर, 3 नंबर को लेफ्ट साइड में भी ऐड किया है, राइट साइड में ऐड करेंगे, देखो दिस नंबर इज रिटन ऑलरेडी। ओके, दिस नंबर इज रिटन ऑलरेडी, व्हाट इज लेफ्ट, दिस नंबर, देन दिस इज द आंसर 163। ओके, नेक्स्ट सेम थिंग यहाँ पे भी, दिस नंबर इज रिटन देयर ऑलरेडी, इट्स मीन दिस नंबर मस्ट बी रिटन 1 1 1। ग्रेट, नेक्स्ट this number is written already. Okay, what is left, this number 5 6 1। now same, this number is written already here। Okay, and again another 2 number are there, you can write any number। Okay, पहला नंबर कुछ भी लिखो, यहाँ पे 1020 अगर लिख रहे हो तो रेस्ट नेक्स्ट नंबर इज 3303, या तो यू कैन रिवर्स दिस ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट सेम थिंग हियर, अनदर प्रॉपर्टीज ऑफ द एडिशन, जीरो इज एडेड टू एनी नंबर बिकम इटसेल्फ। ओके, जीरो किसी के साथ भी ऐड हो जाता है, वो उसी नंबर ही बना देता है। नेक्स्ट सेम थिंग, ये सब्ट्रैक्शन का प्रॉपर्टी है, जीरो इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी नंबर दैट्स बिकम इटसेल्फ। ओके, तो 469। सेम थिंग देखो, एक नंबर से सब्ट्रैक्शन हुआ है लेकिन हमें आंसर सेम मिल रहा है, इटसेल्फ मिल रहा है, इट्स मींस जीरो ही सब्ट्रैक्ट हुआ होगा। ओके, नेक्स्ट वही नंबर से सेम नंबर हमें मिल रहा है आफ्टर एडिशन, उसका मतलब जीरो एडिशन हुआ होगा, इसलिए तो इटसेल्फ मिल रहा है। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट नंबर 2, हियर इट इज रिटन, रिप्लेस, स्टार को हम रिप्लेस करेंगे अप्रोप्रिएट डिजिट के साथ। ओके, नाउ लो सब्ट्रैक्शन, देखो सब्ट्रैक्शन दे रखा है, इसका मतलब
2 विल नॉट कट 5, 2 से तो 5 नहीं काट पाएंगे, उसका मतलब यहाँ पे जरूर 12 ही हुआ होगा। ओके, 12 माइनस 5 7। ठीक है, अब ये 12 बनेगा तो इसका मतलब यहीं से आगे से ही कैरी लिया है, इट्स मीन्स इट मस्ट बी 11। ओके, 11 से कितना कटेगा तो 4 आएगा, इट्स मीन्स 11 से 7 कटेगा। ओके, नाउ हियर इट विल बी 13, 13 माइनस 8 इज इक्वल टू 5, इट्स ओके, सही दिया है। नाउ यहाँ पे 13 बना है तो ये जरूर क्या बना होगा, 8 बना होगा। ओके, 8 माइनस 6 करेंगे दैट बिकम 2। ओके, 2 का 2 स्टेप डाउन हो गया। ठीक है, कम टू बी, एडिशन दे रखा है। ओके, देखो 5 प्लस 4 9। ओके, यहाँ पे देखो कौन सा डिजिट के साथ 3 को ऐड करेंगे तो 3 ही होगा, उसका मतलब एडिशन प्रॉपर्टी। ओके, 0 हो गया, ऐड करेंगे। नाउ 8 प्लस 3 11। ओके, लेकिन 1 तो कैरी होगा ही ना, यू नो दैट। 8 की यहाँ पे आ गया, 7 प्लस 1 8। 8 के साथ क्या ऐड करेंगे तो 4 आएगा, 4। तो उसका मतलब अब तो 2 डिजिट नंबर आने वाला है। ओके, 8 के साथ 6 ऐड करेंगे तो देखो दैट्स बिकम 14। 14 का देखो यहाँ पे 4 लिख दिए। ओके, लेकिन 1 कैरी हुआ होगा, चेक करने के लिए नेक्स्ट कर लोगे। देखो 5 प्लस 3 8, उसका मतलब ये चेक इसलिए किया ताकि हमें चेक करना है कि हम जो किए हैं वो सही है या नहीं। लास्ट नंबर अगर कैरी नहीं करोगे तो लास्ट नंबर सही ही नहीं आएगा। ठीक है, तो कैरी करते रहना। नेक्स्ट, चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है आफ्टर डूइंग सॉल्विंग द नंबर। अगेन एडिशन। ओके, 8 के साथ क्या एडिशन करेंगे तो 9 होगा। देखो बाय द वे इसके नीचे नहीं लिखा है, दिस इसके नीचे ही मान लेना इसको। 8 के साथ 1 ऐड करेंगे तो दैट्स बिकम 9। ठीक है, अब इसके साथ 0 को ऐड करेंगे तो 6 होगा, उसका मतलब 6 के साथ ही 6 को 0 वाला प्रॉपर्टी। ठीक है, तो दिस इज कवर। देखो 9 प्लस 8 कितना बनाता है 17, तो लिखो 7, 1 को फिर कैरी करो और चेक करो सही दिया है नहीं दिया है। देखो 3 प्लस 1 4 प्लस 9 13, हाँ 3 आ गया, उसका मतलब सही है जा रहे हैं। नाउ 1 अगेन कैरी। ओके, क्योंकि 13 हुआ था। 2 प्लस 1 3, 3 के साथ क्या ऐड करेंगे तो 4 होगा, उसका मतलब 1 ही ऐड करेंगे। ओके, 4 और 1 स्टेप डाउन हुआ है, उसका मतलब सही है। नेक्स्ट 9, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, ध्यान से देखो। 9 से क्या माइनस करेंगे 3 6 डायरेक्ट। ओके, 1 से क्या माइनस करेंगे 0, 1 से 1 ही कटेगा तो 0 होगा, प्रॉपर्टी ऑफ द सब्ट्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखो 0 से 3 कटा है, बाय द वे इट इज नॉट 0, ये क्या 10 बना होगा तब जाके तो 3 को कटा है, देन इट्स बिकम 7। देखो ये 10 बना है तो जरूर इधर इधर से कैरी लिया होगा तो इट्स बिकम 9। 9 माइनस 4 इक्वल टू 5, उसका मतलब सही जा रहे हैं। ओके, देखो ये 9 कैसे बना, यहाँ से लेकर बना होगा। ओके, इट्स बिकम 7। 7 माइनस डेक्स इक्वल टू 2, उसका मतलब 5 माइनस करेंगे तो 2 मिलेगा। ओके, दिस विल बी द आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट नंबर, नंबर 3। add these to this। now add these to this। are the two result are same? obviously two result are same होंगे, two result are same होंगे because it follow, it means addition follow the commutative commutative property। ओके, ये लिख देना और ये ऐड कर देना। ओके, इसको फिर और क्या बताऊं एडिशन को। नेक्स्ट, ऐड द फॉलोइंग नंबर बाय रीअरेंजिंग देम। ओके, यूज द प्रॉपर्टी हियर बोला है, प्रॉपर्टी यूज करना है। ओके, ऐड देम द नंबर बाय द रीअरेंजिंग देम। लुक हियर, which property, first you add these two number। okay, then answer will come, again you have to add with what, 2 1 4, same to same। you can add these two also, प्रॉपर्टी में से कोई भी एक ब्रैकेट बनाकर प्रॉपर्टी ले लेना। ठीक है, वही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को यूज करोगे और बनाते रहोगे। यहाँ पे देखो दिस प्लस इसका जो आंसर आएगा उसी को फिर ऐड करोगे एंड योर आंसर विल कम। ओके, वैसे करके 4 नंबर कर लेना। हम यहाँ पे एडिशन कर लेते हैं फटाफट। देखो मैं डायरेक्ट ओरली कर ले रहा हूँ। 2 प्लस 5 इज 7। ओके, 9 प्लस 6 इज 15, 1 कैरी कर लो। अगेन 8 प्लस 6 14 1 15। ओके, अगेन 1 कैरी कर लो। 8 प्लस 0 8 प्लस 1 9। ठीक है, अब 1 प्लस 6 1 प्लस 6। ओके, that will be 7 and 7 plus 3 is 10। now listen carefully, जब एडिशन कर रहे हो योर प्लेस ऑफ एडिशन शुड बी सेम, प्लेस ऑफ डिजिट। ओके, पहले 7 प्लस 2 इधर में करते हैं, 7 प्लस सॉरी 5 प्लस 2 7। ओके, 9 प्लस 6 15, 1 कैरी। ओके, अगेन 8 प्लस 6 14 प्लस 1 15। ओके, अगेन 1 कैरी। नाउ 8 प्लस 0 0 प्लस 1 9। ओके, नाउ 1 प्लस 6 7। नाउ 7 प्लस 3 10। ओके, देखो these two number are same। ओके, रीअरेंजिंग देम यूजिंग द प्रॉपर्टी बोला, देखो प्रॉपर्टी यूज करना है। देन यू कैन यूज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हियर। व्हाट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। व्हाट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पे देखो दिस इज जस्ट लाइक द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, बट यहाँ पे 3 नंबर आएगा तो हम 2 नंबर को ब्रैकेट करके पहले सॉल्व करेंगे, फिर तीसरे नंबर को ऐड करेंगे। ये दोनों को पहले ऐड कर देना। ओके, तो ये दोनों का एडिशन क्या होगा, देखो 8 12 1 कैरी 11, इसके साथ फिर प्लस 2 1 4। ओके, दिस विल बी व्हाट, 8 प्लस 4 12 1 कैरी 2 प्लस 1 3 1 4। ओके, 2 प्लस 1 3
अगेन 1, 1 3 4 2, ठीक है। यहीं पे भी सेम टू सेम इसको करो, देखो नाउ इट इज इजी, ओके। ये दोनों को पहले ऐड करोगे, दिस बिकम 2 4 7 9, क्योंकि देखो ये तीनों का डिजिट तीनों जीरो के साथ ही ऐड हो रहा है, ओके। प्लस 21, दिस विल बी 9 प्लस 1 10, 1 कैरी, 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10 कैरी था जो, फिर अगेन 1 कैरी हो गया, 4 प्लस 1 5, ओके, अगेन 2 2 5 0 0। नाउ यू कैन लुक हियर, ये दोनों को ऐड करते हैं, ओके, ये दोनों को ऐड करते हैं, रूल के हिसाब से ये करना है। बट व्हाट यू कैन डू हियर, हम यहीं पे वही नहीं करेंगे, ठीक है, हम फटाक से करते हैं। अब वैदिक मैथ को यूज करके करते हैं, हर चीज ऐसे करने से नहीं होगा, ओके। तो एक बार मैं बताता हूँ कि यहाँ पे वैदिक मैथ का कैसे यूज कर पाओगे। लो क्या, पहला नंबर में भी वैदिक मैथ का यूज होकर फटाफट कर पाओगे। लो, तुम क्या करना है, इसको ब्रैकेट जो बनाओगे रीअरेंज कर देना, ओके। इसके साथ किसको ये ऐड करना, 275, ओके। उसका मतलब देखो, ये दोनों मिलाकर क्या बनाएंगे देखते हैं, देखो 75 प्लस 25, दोनों मिलाकर 100, ओके। अगेन यहाँ का 200, यहाँ का 200, 400 प्लस 100 मीन्स कंफ्यूज हुए होंगे, फिर दोबारा देखो, ये 200, ये भी 200, 200 प्लस 200 400, नाउ दिस 25 प्लस 75 100 और ज्यादा ऐड हो जाएगा, इट्स मीन्स यहाँ से 500 आ रहा है प्लस, फिर देखो ये दो नंबर सेम है, ओके, तो यहाँ से फिर 500 आएगा, नाउ इट्स बिकम 1000, ओके। यू कैन डू लाइक दिस ऑल्सो, ओके। सिर्फ तुम्हें रीअरेंज करके ये दोनों को पास पास लिखना है, करो। पहला नंबर पे भी यूज कर सकते थे, देखो यहाँ पे 6 यूनिट डिजिट है तो 4 यूनिट डिजिट को ऐड करना, जैसे कि देखो 86 प्लस 14 कितना बनाता है 100, ओके। 100 को याद रखो, फिर 7 प्लस 2 9, उसका मतलब 900 प्लस 100 1000 बना था, ओके। तो उसके साथ 342, सॉरी 342 है ना, हाँ 342 को क्या करना है, ऐड कर देना, देखो 1342, व्हाट इज द ग्रेट आइडिया, ओके। डायरेक्ट आंसर आएगा, फटाफट आएगा, सेम टू सेम, यहाँ पे तो पता चला ही गया था, ओके। नाउ लो, इसको तुम ऐड कर देना पास में रख के, किसके साथ, देखो 7 यूनिट डिजिट है तो इसको यूज करना, तो क्या बना देखा, देखो 1000, दोनों मिलाकर बनाएंगे 1000, ओके। प्लस फिर ये दोनों को देखो 2476 कितना बनाएंगे 100, ओके। अब देखो 13 प्लस 9 19 बनाएगा, 1900 प्लस 100, उसका मतलब यहाँ पे 2000 बन रहा है, ओके। 2000 प्लस 1000 3000, फटाफट आ रहा है, देखो फटाफट आएगा भी, वैदिक मैथ को यूज कर, उसका मतलब दैट इज द प्रॉपर्टी, ओके। अब देखो यहाँ पे 7 यूनिट डिजिट है, यहाँ पे 3 यूनिट डिजिट, ओके, तो ये दोनों मिलाकर 100। अब देखो यहाँ पे 6 प्लस 3 9, ओके, 900 प्लस 100, उसका मतलब 1000 प्लस 908। अब देखो 908 तो 3 जीरो के साथ ऐड होकर वही नंबर लिखे 1908, फटाफट आ जाएगा आंसर, ओके। नाउ 62 को ऐड करना है किसके साथ, 38 के साथ, फिर 100 बनेगा, ओके। यहाँ पे 20 प्लस 9 29 और 100, उसका मतलब 3000, ओके, 30 अब देखो ये 47 प्लस 53 100 बना रहा है, ओके। 5 प्लस 3 800 प्लस 1 मीन्स 100 900, अब ऐड कर देना है 3900, फटाफट आएगा आंसर। नेक्स्ट, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग एंड चेक योर आंसर, करेस्पॉन्डिंग एडिशन, पहले सब्ट्रैक्शन करो भाई, इसको प्रोसेस में करते हैं, ओके। हर चीज वैदिक मैथ से करोगे तो मार्क नहीं मिलेगा ना। 17005, you have to write the step, okay. First you do this, 5 minus 5 0, 3 minus 0 3, 4 minus 0 4, okay. 9 minus 7 2, 1 2 minus 1 1। now what you have to do, क्रॉस चेक करना है, तो यहाँ पे लिख देना चेक, ओके। चेक में क्या करते हैं, हमारा जो आंसर आया था, आंसर को ऐड कर देंगे किसके साथ, 17005 के साथ, चेक करते हैं, देखो 5 प्लस 0 5, 3 प्लस 0 3, 4 प्लस 0 4, 2 7 प्लस 2 9, 1 प्लस 1 2, चेक करो यही नंबर आया क्या, 29435, 29435, वाओ ग्रेट, इट इज द आंसर, इट्स मींस यू हैव डन करेक्टली। नाउ कम टू द अनदर, ओके। यहाँ पे देखते हैं, सेम टू सेम, यहाँ से इसको पहले सब्ट्रैक्ट करोगे देन यू विल चेक इट, ओके। इसको भी सब्ट्रैक्शन करोगे देन यू विल चेक इट, सेम, ओके। नंबर 5 इज होमवर्क फॉर यू, एवरीवन डू एंड डू कमेंट, कमेंट करो, अगर इफ यू हैव एनी डाउट, कोई डाउट रहेगा कमेंट करते रहना। कम टू द नंबर 6, व्हाट इज नंबर 6, लुक हियर, it is given that in a school, okay, the number of student is 5637, if 142 student took admission during that year, okay, find the total number of student, total means addition, total is the keyword and here you have to what, you have to add this, okay। फटक से करते हैं, देखो एडिशन, तुम you have to write the step, तुम लोग स्टेप लिखोगे, ओके। स्टेप कैसे लिखोगे, जस्ट लुक, मैं यहाँ पे स्टेप लिख कर मैं स्टेटमेंट के साथ बता रहा हूँ, ओके। स्टेटमेंट कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे तुम लिखोगे नंबर ऑफ स्टूडेंट equal to how much, 5637, okay. Now number of student took admission equal to how much, 142, okay. Now you have to add this 9775 and you have to write the final statement here,
ओके, द टोटल number of student is 5779 and like this you have to do the whole number. ओके, पूरा का पूरा स्टेटमेंट के साथ करना होगा, ठीक है। नाउ कम टू द सेवन नंबर। ओके, व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, लुक हियर, द प्राइस ऑफ ए कार इज दिस मच, इफ इट इज इंक्रीज बाय दिस, फाइंड द न्यू प्राइस ऑफ द कार। तो यहाँ पे तुम लिख देना, पहले तो लिख देना प्राइस ऑफ द कार, प्राइस ऑफ द car is equal to 376866. Okay, now it is increase by equal to कितना रहेगा, 42049। नाउ इट इज इंपोर्टेंट, मैं क्या इंपोर्टेंट बता रहा हूँ ध्यान से सुनो, यूनिट प्लेस वाला डिजिट को सेम प्लेस में ही रखना, नहीं तो तुम्हारा एडिशन गलत होने का चांसेस है, ठीक है। तो जब भी नंबर दोनों को लिख रहे हो तो योर यूनिट प्लेस और 10 प्लेस वट एवर दैट मे बी मीन्स प्लेस डिजिट सेम रहना चाहिए। ओके, 9 + 6, ओके मैं नीचे लिख दे रहा हूँ 15, 1 कैरी कर लो। ओके, नाउ 7 + 4 11, अगेन 1 कैरी कर लो। 8 + 1 9, ओके, then 6 + 2 8, 7 + 4 11, again 1 carry, it means 3 + 1 4, then you have to write the final statement below कि क्या लिखोगे, the new price, okay, the new price of car is how much, 418915, या तो रुपीज का सिंबल पहले से डाल दे सकते हैं। ओके, कम टू द नेक्स्ट नंबर, a club organize a trip, okay, a club organize a trip to Disney World, okay, the cost of the whole package is this much, okay, the club discount क्या है, what is discount, पैसा कम कम करना, okay, this much, what is the cost of the package after the discount, discount के बाद क्या रहा, तो हमारा क्या रहेगा, देखो ऊपर में लिख रहा हूं मैं स्टेटमेंट, ओके, कॉस्ट ऑफ पैकेज, काम लिखोगे तो भी चलेगा लेकिन स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। ओके, कॉस्ट ऑफ पैकेज हाउ मच, 183,420, ओके, उसके नीचे डिस्काउंट, ओके, द डिस्काउंट इक्वल टू हाउ मच, देखो 47,632, ओके, एंड डिस्काउंट का मतलब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। ओके, देखो 0 से 2 नहीं हो पाएगा तो 10, 10 - 2 इज 8, नाउ इट विल बी 11, 11 - 3 इज इक्वल टू 8, again it is 13, 13 - 6 is equal to 7, now it is 12, 12 - 5 is equal, sorry, 12 - 7 is equal to 5, now it is 7, 7 - 4 is equal to 3 and 1 carry, and this is the after discount price। okay, यहाँ पे फाइनल स्टेटमेंट में फिर लिख दोगे what is the package after discount, the cost after discount is how much, rupees 13578। okay, now next come 9 number, Rahul deposited this much in the bank after a week, he withdraw का मतलब निकाल लेना पैसा, तो पैसा कम हो जाएगा। okay, what is the current balance, current का मतलब अभी निकालने के बाद। okay, then what you will do here right now, Rahul deposited money equal to how much, 57,630, okay, he withdraw विड्री कर लिया। ओके, कितना, देखो 19211, ओके, यहीं पे हम माइनस करते हैं, 10 - 1 9, ओके, 2 - 1 1, 6 - 2 4, देखो 7 नहीं होगा, 17 कैरी ले लो, 17 - 9 8, ओके, नाउ 4 - 1 3, यहाँ पे फिर फाइनल स्टेटमेंट लिखना होगा, द करेंट बैलेंस इज, द करेंट बैलेंस is rupees 38419। okay, now come to number 10, a garment factory, okay, produce this much trousers every year, हर साल। okay, out of this 12309 are for men and these are for the women, find the number of trousers produced for the children। अच्छा, बाकी जो बचा होगा वो चिल्ड्रन के लिए बना होगा। ओके, तो हम पहले यहाँ पे हियर टू ऑपरेशन विल बी देयर, पहले एडिशन करेंगे, ओके, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे, या तो यू कैन डू द अनदर प्रोसेस आल्सो, 2 टाइम्स सब्ट्रैक्शन। ओके, तो 2 बार सब्ट्रैक्शन वाला ऑपरेशन भी कर सकते हो। तो हम पहले करते हैं मेन का,
मैन इक्वल टू कितना, मैन इक्वल टू 12309, ओके। और ओमेन, वुमेन इज इक्वल टू कितना, 9538। हियर वी हैव टू ऐड दिस, ये दोनों को ऐड करके देखते हैं। 9 प्लस 8 17, 1 कैरी, ओके। 3 प्लस 1 4, 5 प्लस 3 8, 9 प्लस 2 11, अगेन 1 कैरी, इट्स मीन्स 2। इट इज बाय द मैन प्लस वोमेन, ठीक है। एंड द रेस्ट आर चिल्ड्रेन, उसका मतलब रेस्ट इज इक्वल टू, टोटल में से हम माइनस कर देंगे कि इसको एम प्लस डब्ल्यू, मैन और वोमेन जो मिलकर जितना बने थे, ओके। दिस इक्वल टू हाउ मच, देखो, या तो तुम ये समझाने के लिए लिखा हूं, स्टेटमेंट में लिखोगे, ऐसे लिखोगे, फिर देखो, द टोटल इक्वल टू 33000, ओके। एंड मैन प्लस वोमेन इज इक्वल टू 21847। हाउ यू हैव टू, नाउ यू हैव टू डू subtraction, okay। 10 minus 7 3, 9 minus 4 5, 9 minus 8 1, 2 minus 1 1, okay। again 3 minus 2 1, and this is your आंसर। यहाँ पे तुम फाइनल स्टेटमेंट लिख देना। क्या होगा फाइनल स्टेटमेंट, कि द ट्राउजर, द नंबर ऑफ ट्राउजर फॉर चिल्ड्रेन each how much, 11153, okay, this is your answer। another worksheet 4, okay। now यूज ऑफ द प्रॉपर्टी बोला है, चेक करते हैं। प्रॉपर्टी यू मस्ट नो, जीरो किसी के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाता है तो जीरो ये बना देता है, ओके, छोड़ता नहीं है वो जीरो। तो योर फर्स्ट आंसर इज जीरो। नेक्स्ट, वन इज सिंपल, वो किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होता है तो देयर इज नो चेंजेस, वो इटसेल्फ ही बनाता है, ओके। वही सेम नंबर ही बनाएगा, ओके। 4741। नेक्स्ट, हियर इट इज व्हाट वी कॉल द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ओके। एडिशन में जो किए थे, एडिशन के चैप्टर में, ओके। अब देखो, you can reverse it, what is commutative property, if a into b, what the result will come, then you reorder this, okay, then also your answer will come same। जैसे कि a into b जितना होगा b into a इतना होगा। तो ये तो यहाँ पे लिख चुका है, तो 27 को यहाँ लिख दो, ठीक है। इट्स मीन्स 27 विल कम हियर। नेक्स्ट, यहाँ पे तीन तीन मल्टीप्लीकेशन है, सेम टू सेम। देखो, पहले दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ब्रैकेट के अंदर जो रहेगा, फिर तीसरे के साथ, इफ यू चेंज द ऑर्डर देन ऑल्सो देयर इज बी द सेम रिजल्ट। तो ये तो देखो यहाँ पे लिख चुका है, ठीक है। ये भी यहाँ पे लिख चुका है, तो नेक्स्ट नंबर 581, ओके। नेक्स्ट, सेम नंबर मल्टीप्लाई होकर बन गया, उट्स मीन्स वन ही मल्टीप्लाई होगा। वन का प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लाई होकर सेम नंबर बनाता है। देखो, जीरो बन दिया आफ्टर मल्टीप्लीकेशन, तो जीरो जरूर मल्टीप्लाई हुआ होगा, तब जाके जीरो बना दिया, ओके। नेक्स्ट नंबर, देखो, कितना भी नंबर रहो, एक बार अगर जीरो रह गया तो वो पूरा का पूरा को जीरो बना देगा, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर 2, इफ द कॉस्ट ऑफ वन बर्गर, हाउ मच, 50 रुपीज 50 पैसा, ओके। कॉस्ट ऑफ 25 बर्गर, ओके। तुम यहाँ पे प्रोसेस में लिखते रहना, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके बता दे रहा हूँ। देखो, 25 into 15, 5 करोगे, ओके। देन अगेन 25 into यहाँ पे 5 करोगे, ये आंसर विल कम। चलो करके देखते हैं। यहाँ पे लिखोगे क्या, कॉस्ट ऑफ वन बर्गर इज इक्वल टू 50 50, ओके। सेम, कॉस्ट ऑफ हाउ मच, 25 बर्गर इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 25। लिसन, 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। देखो, 25 into 0 0, 25 into 5 125, 5 को लिखो, 12 को कैरी करो, ओके। 25 into 0 0 प्लस 12, उसका मतलब 12 आएगा, 2 लिखकर फिर 1 कैरी कर लो। 25 into 5 125 प्लस 1 126। लेकिन देखो, पॉइंट 2 प्लेस के बाद लगा है, तो 2 प्लेस के बाद तुम भी पॉइंट लगा दोगे, ओके। दैट इम्प्लाइज द कॉस्ट ऑफ 25 सच burgers are each rupees 1262.50, okay। Next, number 3. In a library, there are 27 book shelves. Okay, there are 479 books on each book shelf. हर एक बुक सेल में कितना है, 479 टोटल। तो मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। यहाँ पे लिखोगे, व्हाट विल राइट हियर, देखो, बुक्स इन वन सेल इज इक्वल टू 479। नेम, बुक्स इन हाउ मच, 27 सेल इज इक्वल टू इंटू 27, ओके।
देन हाउ यू विल मल्टीप्लाई दिस, ओके, डोंट यूज रॉब यूज नहीं करना है, यू कैन यूज द वैदिक मेथ हियर, ओके, वैदिक मेथ को यूज करके हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करेंगे। नाउ इट विल बी वेरी इजी फॉर यू, ओके, मेथ को यूज करके मल्टीप्लाई करते हैं हम, क्या करते हैं, देखो 479 के साथ 270 मान लो, ओके, एक जीरो ऐड कर रहे हैं, लास्ट में एक जीरो को काट देंगे, ठीक है। तो अब देखो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले तो 9 इंटू जीरो, हाउ मच, जीरो, ओके, या तो जीरो कट जाएगा, दैट इज द रिमेनिंग थिंग, बाद में देखेंगे, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, जीरो प्लस सेवन जीरो, 9 प्लस सेवन 63, थ्री को लिखकर 6 कैरी करो, ओके। नाउ तीनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 इंटू जीरो जीरो, 9 इंटू टू 18, 7 इंटू सेवन 49, 49, 49 प्लस 18 पहले कर देंगे, ओके, 49 प्लस 18 कितना होगा, देखो 49 प्लस 1 50, 67, 67 के साथ हमारा 6 कैरी था, ओके, 67 के साथ कितना कैरी था, 6 कैरी था, तो ये हो जाएगा 73, तो 3 लिखो 7 कैरी करो। अब ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, 28 प्लस 14 होता है 42, ओके, 42 प्लस यहाँ पे कितना कैरी किए थे हम, 7 कैरी किए थे, ओके, 42 प्लस 7 49, ओके, फिर 4 4 कैरी किए, 7 2 जा सॉरी 4 2 जा 8, 8 प्लस कितना कैरी किए थे, ओके, 4 4 कैरी किए थे, 4 2 जा 8 प्लस 4 12, ओके। देन यहाँ से देखो जीरो ऐड किए थे तो एक जीरो काट दो, देन दिस इज द आंसर, यहाँ पे लिख दोगे डायरेक्ट मल्टीप्लाई, ये जो मल्टीप्लाई आएगा इसका मल्टीप्लाई है 12933, एंड विदाउट वेस्टिंग मच टाइम इन द रॉब में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके, ये थोड़ा सा बस एडिशन वाला क्या कैरी वाला एडिशन करके फटक से यू कैन डू बाय द यूज ऑफ वैदिक मैथ, व्हाट, वैदिक मैथ, फॉर वैदिक मैथ क्लास यू कैन contact me, okay। Now come to the next number, number 4, okay, a store has 432 dresses for girls, ठीक है, the cost of each dresses, इसको थोड़ा रिमूव कर लेते हैं, ड्रेस का कितना है 583.50, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ऑल द ड्रेसेस, तुम यहाँ पे लिखोगे, ओके, कॉस्ट ऑफ ईच ड्रेस is equal to 583.50, then cost of how many dresses, 432 dress is equal to, you have to multiply 432, ठीक है। या तो इसका दो तरीका मैं बताऊंगा तुम लोगों को, ओके। पहला तरीका ये है कि देखो 583 को मल्टीप्लाई करते हैं 432 के साथ, इसको भी वैदिक मेथ को यूज करके करेंगे, किसको यूज करके, वैदिक मेथ के, फटक से 3 टू जा हाउ मच 6, ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 टू जा 16, 3 3 जा 9, 16 प्लस 9 25, 5 को लिखा 2 कैरी किया, ठीक है। अब देखो तीनों को, 5 2 जा 10, 4 3 जा 12, 12 प्लस 10 22, 8 3 जा 24, 24 प्लस 22 हाउ मच 46, 46 प्लस यहाँ पे कैरी 2 था, ओके, तो 48, अगेन 4 कैरी कर लो, ठीक है, ठीक है। अब इसका क्रॉस, 5 3 जा 15, 8 4 जा 32, 32 प्लस 15 उसका मतलब 32 प्लस 10 42, 42 प्लस 5 47, और यहाँ पे फिर 4 कैरी है, ओके, 47 प्लस 4 51, 5 कैरी कर लो, ठीक है। अगेन नाउ लास्ट मल्टीप्लाई, 5 4 जा 20, 20 प्लस 5 25, दिस इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज टू नंबर, ओके, ये आंसर आ गया। लेकिन बात इसमें नहीं रुका है, ओके, बात यहाँ पे 50 पैसा है, 50 पैसा का मतलब आधा रुपया, तो इसका आधा कर लेते हैं, तो 432 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे उसका आधा आ जाएगा 216, ओके, इसको ऐड कर दो, 12 1 कैरी, ओके, 7 देन 10 अगेन 1 कैरी दैट इज 2 5 2, ओके, दिस इज योर आंसर, यहाँ पे तुम लिख दोगे दिस इज द रफ, देखो रफ करके ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट ऐसे करना है, डायरेक्ट आंसर लिखना है 25207 2, ठीक है, दिस इज द आंसर डायरेक्ट विथ पॉइंट, और पॉइंट यहाँ पे डालना नहीं पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ पे क्या किए हैं, दिस इज डायरेक्ट ऐड कर दिए हैं, किसको, रुपीज को ऐड कर दिए, पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करके, ओके, दिस इज योर आंसर, यहाँ पे फाइनल स्टेटमेंट यू कैन राइट, ओके। वर्कशीट 5 में देखो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आ गया, पहले ये प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, देखो मान लो हम ए को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, बी के साथ भी और सी के साथ, और बी और सी वो कैसे हैं, ब्रैकेट के अंदर हैं, उसका मतलब ये ए दोनों के साथ मिलना चाहता है, किसके साथ, बी के साथ भी और सी के साथ, जब ब्रैकेट गेट खोल देंगे जब, उसका मतलब ए पहले बी के पास चला जाएगा, फिर ए किसके पास चला जाएगा, सी के पास चला जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ओके, डिस्ट्रीब्यूट हो जाना, सभी के पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, याद रखना। नाउ 52 दोनों के पास चला जाएगा, पहले 52 किसके पास आ गया, 63 के पास, फिर 52 किसके पास चला जाएगा, 37 के पास, ओके। नेक्स्ट देखो 297, ओके, दिस इज द कॉमन नंबर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अब देखो यहाँ पे 88 लिखा है,
तो उसका मतलब 88 जरूर यहाँ होगा, तब जाके तो पहला मल्टीप्लाई हुआ है। फिर यहाँ पे 43 है, देन दिस इज 43। नाउ 36 इज कॉमन, देखो पहले 84 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, दिस इज 84, ओके, इट्स मींस 36 इज मल्टीप्लाई विद बोथ द नंबर, द नेक्स्ट नंबर इज 16। नाउ हियर इट इज इंपॉर्टेंट, लुक हियर, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं दिया है, देखो 218, ओके, यहाँ पे देखो 218 को कॉमन बना दिया है, लेकिन ये क्या क्या है, देखो यहाँ पे 6 के साथ मल्टीप्लाई किया है, जो कि यहाँ पे 6 है ही नहीं, तो ये क्या क्या है, 100 - 6 बना दिया है, ओके, और इसमें ब्रैकेट लगा दो, उसका मतलब यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 6, सेम टू सेम यहाँ पे देखो, दिस इज द कॉमन नंबर 778, ओके, इट्स मीन्स यहाँ पे क्या है, देखो, हाँ इट इज इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ पे फिर एक बार इंटू वन कर लो, इंटू वन, ओके, देखो 1000, 1000 से 6 माइनस करोगे तो ये आएगा, ओके, देखो 1000 दे रखा है, तो 6 यहाँ आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 6 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, देखो 6 से फिर एक माइनस कर दो, क्योंकि ये लास्ट वाला जो माइनस है यहाँ पे चला गया, तो बाकी बचा 5, ठीक है, तो दिस इज द मल्टीप्लीकेशन। नाउ कम टू द नंबर 2 में आ जाओ, रीअरेंज द एंड द मल्टीप्लाई देम, ओके, रीअरेंज करके मल्टीप्लाई, देखो रीअरेंज बोला है तो आसान बनाएंगे, फिर चलो फटाक से देखते हैं, एक काम करते हैं, 128 को 8 के साथ पहले पास में लिखना, 125 इंटू 8 इंटू 488, और ये मैजिक बना देगा, मैजिक, देखो 125 इंटू 8 कितना बना है, 1000 इंटू 488 कितना होगा, देखो भाई 3 जीरो लग जाएगा, बस 18488 000, ओके, दिस इज द मैजिक। नेक्स्ट, सेम टू सेम, व्हाट यू कैन डू हियर, कौन किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, देखो ये दोनों मल्टीप्लाई करके कितना बनाएंगे, 1000, कितना बनेंगे, 1000। नाउ ये दोनों की बात करते हैं, ठीक है, अब देखो यू कैन डू द अनदर थिंग्स ऑल्सो, इससे 5 कर देंगे तो 125 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 8 इंटू 125 कितना बनाता है, 1000, और एक जीरो भी है, एक जीरो भी लिख देना, ओके, इंटू हमारा वाला ये, और 3 जीरो, देखो यहाँ पे 4 जीरो, यहाँ पे 3 जीरो, टोटल एक के साथ 7 जीरो बाई करोड़ बनाने वाला है, ठीक है, तो 1 के साथ 7 जीरो आ जाएगा, 1 करोड़ बना देगा, ठीक है। नाउ अगेन लुक, दिस इंटू दिस 1000, ओके, एंड 25 इंटू 4 100, 100 के साथ और एक जीरो है, तो और एक जीरो, अब देखो यहाँ पे 3 जीरो 3 जीरो 6 जीरो बना देंगे, ओके, 10 लाख वाला बात है भाई, ठीक है। नाउ दिस नंबर अगेन यू कैन डू, व्हाट यू कैन डू हियर, देखो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो भी चलेगा, 25 इंटू 4 ये तो 100 बनाएगा, ठीक है। नाउ 625 इंटू 2 कर सकते हो, देखो 6 2 जा कितना होता है, 12 होता है, और 25 2 जा 50 होता है, ओके, यही बनेगा, इसके साथ और एक जीरो, इंटू फिर 1000 मल्टीप्लाई करना है, तो 125 के साथ कितना जीरो, 5 जीरो, 125 लाख की बात है, ठीक है। नाउ 25 इंटू 5 कितना बनाता है, 100, 100 में दो जीरो, तो ये वाला नंबर के साथ दो जीरो लिख दो, आसान है, सब आसान है, ओके, सिर्फ करते जाना, देखो 2 मल्टीप्लाई कर दोगे 50 के साथ कितना बना देगा, ओके, ये दोनों मल्टीप्लाई करके बनाएंगे 50 इंटू 2 100 के साथ और दो जीरो, ठीक है। अगेन देखो ये वाला कंसेप्ट, यहाँ पे जो कंसेप्ट लगाए थे यहाँ पे भी लगाओ, ठीक है, इससे क्या करना है, 5 काम कर दो, 5 काम करने से क्या हो जाएगा, 125, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई कर दो कितना बनेगा, 80, ओके, ये दोनों की बात, 125 इंटू 8 1000 के साथ और एक जीरो, यहाँ पे 4 जीरो, यहाँ पे 4 जीरो, भाई मल्टीप्लाई जब हो जाएगा ये मैजिक बना देगा, 8 जीरो, 3 4 5 6 7 8, 10 का पावर 8 की बात चल रहा है भाई, 10 का पावर 8, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट नंबर, फाइंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट फाइंड करना है बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, हम हमारे मन से बनाएंगे भाई, देखो 107 दिया है, तो हम क्या करेंगे, 100 प्लस 7 करेंगे, ओके, अब मल्टीप्लाई करोगे तो 241 इंटू 100 प्लस 241 इंटू 7, ये मैं ऐसे ही लिख दिया भाई, जानने के लिए तुम लोगों के लिए, ओके, करना तुम्हें है, इसलिए नहीं तो मैं तो डायरेक्ट भी आंसर लिख सकता हूँ, 24100, okay, plus you have to multiply this, okay, this will be what, 717 7 4 ja 8, 28 2 carry 14 plus 2 16, now you can add these two, देखो दोनों दोनों मिलकर वही दोनों ही बनाएंगे सेम नंबर, ओके। नाउ 6 प्लस 1 7, 4 plus 1 5 2, this is the answer, okay। What you can do here, you can do 100 minus 5, okay, first you have to multiply this number 439 into 100, नाउ यू हैव टू सब्ट्रैक्ट, देखो बीच में सब्ट्रैक्शन का सिंबल आ रहा है, 439 इंटू 5, ठीक है, तो ये तो आसान है मल्टीप्लीकेशन, कितना 43900 माइनस
इसको थोड़ा मेहनत करके कर लेना। ओके, या तो इसका दूसरा वाला प्रोसेस भी है, 10 के साथ मल्टीप्लाई करके 2 डिवाइड करो, एक ही बात होता है। ओके, या तो कर लो, 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा देखो, 4390। अब क्या करना है, 2 के साथ क्या करना है, डिवाइड, इसका मतलब 2 से डिवीजन करना आसान हो सकता है। 2 2 जा 4, ओके, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 5 जा, अब यहाँ पे माइनस करना है देखो, 100 माइनस 95, 05, ठीक है। यहाँ पे 8, 8 minus 1, 7. Okay. Now 3 minus 2, 1, 4. This is your answer. देखो ये 41705 is the answer. ठीक है। Now मल्टीप्लाई करना था, इसको करेंगे 100 minus 2. ओके, मल्टीप्लाई 553। देखो उसका मतलब 553 इंटू 100, सब्ट्रैक्शन है भाई, बीच में माइनस है। ओके, अगेन 553 इंटू 2। तो पहला वाला तो आसान है, 553 के साथ 2 जीरो लगा दोगे, फिर माइनस करना है। देखो 3 2 जा 6, 10, 11, ओके, फिर माइनस करते जाओगे। 2 जीरो से मीन्स 2 जीरो को 100 ले लो, 100 से 6 कटेगा 94। ओके, यहाँ पे 2 रहेगा, 2 माइनस 1, 1, ओके, 5 माइनस 1, 4, यहाँ पे 5, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट, इसी को 100 माइनस 6 करते हैं, ठीक है। दिस विल बी 685, यहाँ पे ब्रैकेट लगाना मत भूलना, इंटू 100 माइनस 685 इंटू 6। तो दिस बिकम 685, 00 माइनस, देखो 6 से मल्टीप्लाई, 6 5 जा 30, 3 कैरी, 48 प्लस 3 51, 5 कैरी, 36 प्लस 5 41। देखो 100 से 2 90। ओके, नाउ 4 माइनस 1 इज 3, 8 माइनस 4 इज 4, 6। दिस इज द आंसर। लुक या, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना, 1000 प्लस 9। ओके, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो पहला मल्टीप्लीकेशन 1392 इंटू 1000 प्लस अगेन 1392 इंटू 9। ओके, here it is 9। now this will be how much, 1392000 प्लस, देखो अब देखो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 12528। ओके, अब इसको ऐड कर देखो, देखो 3 जीरो है, लास्ट 3 तो सेम रहेगा, 528। ओके, नाउ 2 प्लस 2 4, ओके, 9 प्लस 1 10, 4 1, दिस इज योर आंसर। अगेन 1000 माइनस 1 करेंगे, ठीक है। अब देखो पहले 399 इंटू 1000 माइनस अगेन 399 इंटू 1। ओके, तो दिस बिकम 399000 माइनस 399। अब बात कैसे करते हैं देखो, इसकी बात करते हैं। ओके, 2 जीरो से 99 गया तो 1, ठीक है। यहाँ पे 9, 9 माइनस 3, 6। ओके, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 3, एंड दिस इज योर आंसर। these two इज ऑलरेडी मल्टीप्लाई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज हो गया है, मल्टीप्लाई। ओके, अब क्या करते हैं देखो, दिस इज द कॉमन नंबर, ब्रैकेट में ये दोनों को 62 प्लस 38 कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। ओके, नाउ द आंसर विल कम 1562 इंटू, देखो ये दोनों को ऐड करने से कितना मिलेगा, 100। ओके, दैट इज द आंसर 156200। ओके, सेम टू सेम, यहाँ पे कॉमन क्या है देखो, लुक क्या, यहाँ पे 15 कॉमन है। ओके, तो 15 में कॉमन लिखो ब्रैकेट के बाहर, फिर 85 प्लस 15, अगेन इट इज 100। ओके, देन द आंसर विल बी 15 इंटू 100, दैट इज 1500। क्लियर, सेम यहाँ पे कॉमन चेक कर लो पहले। ई नंबर बता रहा हूँ। ओके, लुक या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वाला तो मुझे दिख नहीं रहा है, तो एक काम करते हैं, देखो दिस इज 25। ओके, इससे 25 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 हटा दो, तो 5 हटाओगे तो ये 25 बनेगा, और 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये 40 बनेगा। ओके, नाउ दीज टू मीन्स 25 एंड 40, इट्स मीन्स दिस 25 एंड 40, ये कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो 25 इंटू 40 को कॉमन ले लो, ब्रैकेट स्टार्ट करो, 883 प्लस 117। देखो प्लस के लेफ्ट साइड से ये, प्लस के राइट साइड से ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ओके, नाउ देखो 25 इंटू 4, 100 के साथ और एक जीरो, ठीक है। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट में कितना आ रहा है देखो, यहीं पे भी सेम, ये दोनों मिलाकर 100 बनाएंगे, ठीक है। और ये 9 और 100, उसका मतलब 1000 यहीं से भी आ रहा है, तो टोटल 60। ओके, 10 लाख की बात है। ओके, 10 लाख की बात है। नेक्स्ट, डी नंबर, यहीं पे भी वही सेम, कॉमन पहले चेक करो क्या क्या है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, देखो बीच में प्लस आ गया ना, ये भी प्लस, तो ये कॉमन है, ये भी प्लस, तो ये कॉमन है, तो कॉमन वाला को पहले लिख लो, ब्रैकेट स्टार्ट, क्या क्या बचा, 17 प्लस, और क्या बचा, 38, और क्या बचा, इधर में अगेन 27। ओके, प्लस दिस इज 18। नाउ लुक हियर,
हम क्या करते हैं, देखो ये दोनों को पहले ऐड करो। ओके, 30 प्लस 40 50 55। ओके, ये होगा 55। और ये दोनों क्या होगा, 20 प्लस 10 30 एंड 15 45। यहाँ पे 55, यहाँ पे 45, इसका मतलब ये भी 100 ही बना रहा है। तो 750 इंटू 100, दैट बिकम 75 के साथ 000। ओके, अगेन लुक क्या, ये दोनों मिलाकर 55 बना रहा है और ये दोनों मिलाकर 45 बना रहा है। इसी इसी वजह से क्या बन गया, वो दोनों मिलाकर फिर 45 एंड 55 मिलाकर 100 बन गया। ओके, लुकिए नेक्स्ट, डी नंबर में देखो ये कॉमन है। ठीक है, हाँ यहाँ पे देखो, ये भी देखो, यहाँ पे 3 कॉमन है क्योंकि हम यहाँ पे ऑपरेशन प्लस और माइनस को कंसिडर कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में। तो कॉमन 3683, सॉरी, यहाँ पे कॉमन कितना है, 638। तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 176 माइनस, ये कितना है 75, ये कितना है -1। क्यों, देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम 1 मानते हैं। ठीक है, दिस वन। नाउ दिस विल बी व्हाट, 638। इसमें से 75 कटेगा तो 101, फिर 1 कटेगा तो 100। ओके, देन 63800 इज द आंसर। ओके, सेम टू सेम यहाँ पे आ जाते हैं। देखो 688, यहाँ पे देखो 688 कॉमन है लेकिन एक जीरो ज्यादा है। ओके, या तो ये जीरो को इसके साथ ऐड कर लो, सेम कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन ले लो। 6880 कॉमन चला गया तो बचा 437, और इधर में माइनस होकर 337। ठीक है, तो देखो 3737 कट गया, जीरो। ओके, 4 से 3 कट गया, 1। तो 6880 इंटू 100। ठीक है, देखो दिस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, दैट इज, तो आंसर कितना हो गया, 688 1230। क्लियर, नंबर 4 समझ में आया होगा। नाउ कम टू नंबर 5। रोन बाय देखो 12 कंप्यूटर्स एंड 12 प्रिंटर दोनों कॉमन है। द कॉस्ट ऑफ वन कंप्यूटर कितना, दिस मच, एंड द कॉस्ट ऑफ वन प्रिंटर कितना, दिस मच। फाइंड द टोटल कॉस्ट, यहाँ पे बोल दिया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करके। तो हमारा मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, 12 कंप्यूटर, 12 कंप्यूटर प्लस 12 प्रिंटर। ओके, दिस विल बी व्हाट, 12 इंटू 56233। ओके, ऊपर ले लेते हैं थोड़ा, प्लस 12 इंटू हाउ मच, 7867। ओके, यहाँ पे कॉमन क्या है, 12 कॉमन है, तो 12 कॉमन ले लो। ब्रैकेट में क्या रहेगा, 56233 प्लस 7867। ओके, अब इसको ऐड करते हैं। देखो देखो, दीज टू 100। ओके, ये मिलाकर, चलो बताता हूँ। 12 इंटू देखो 33 एंड 67 100। ओके, तो 1 कैरी कर लो। देखो 8 प्लस 2 10 प्लस 1। ओके, तो ये तो 0 0, यहाँ पे 1 आ गया। ओके, अगेन 1 कैरी हो गया। 7 प्लस 6 13 प्लस 1 14। ओके, अगेन 1 कैरी हुआ है। 5 प्लस 1 6, दिस मच इट इज। अब मल्टीप्लाई करना है। देखो 2 जीरो के लिए 2 जीरो, अब 12 से मल्टीप्लाई करो। 12 1 जा 12, 1 कैरी कर लो। 12 4 जा 48 प्लस 1 49, 4 कैरी कर लो। 12 6 जा 72। ओके, 72 प्लस 4 76, दिस इज द आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट नंबर, in a school, okay, the monthly fee of the children is 497, and if there are this much student in the school, find the total collection in the month, and distributive property को यूज करके बोला है। तो 497 इंटू 2983, यही करना है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, या तो इसमें भी यूज कर सकते हैं, एक ही बात है। हम यहाँ पे कर लेते हैं 500 माइनस 3 इंटू 2983। ओके, this will be 500 into 2983 minus 3 into 2983। okay, now this will be how much, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, 5 3 15, 1 के लिए 40 प्लस 1 41, 4 के लिए 45 प्लस 4 49, अगेन 4 के लिए 10 प्लस 4 14, माइनस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 9। ओके, 3 8 जा 24, 2 के लिए 9 3 जा 27 प्लस 2 29, अगेन 2 के लिए 6 प्लस 2 8। ओके,
अब माइनस कर देते, देखो 2 जीरो से 49 कटेगा तो कितना होगा? 51। ठीक है। अब यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 मीन्स 14, 14 से 9 कटेगा तो अगेन 5। ठीक है। यहाँ पे 10, 10 से 2 कटेगा तो, सॉरी 10 से 8 कटेगा तो 2, यहाँ पे 8, यहाँ पे 1, 4, एंड दिस इज योर आंसर। इसको लेकिन स्टेटमेंट में लिखना है, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, यू कैन डू दिस वे कैलकुलेशन बट यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट। ओके, स्टेटमेंट लिख कर